آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ کل ہونے والے اجلاس میں آزاد کشمیر کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے بھی آزاد کشمیر کے مسائل بات چیت سے حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی نے رانا ثناء اللہ کی ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی۔ ترجمان رؤف حسن نے کہا بات انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ڈمی ہیں، ان کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں۔ انکار اقرار میں بدلے گا۔ آخرکار پی ٹی آئی سے براہ راست ہی بات ہوگی۔ اور پاکستان کے لیے آئرلینڈ کے خلاف سیریز بچانا چیلنج، دوسرے میچ میں 194 رنز کا بڑا ہدف، سائم ایوب ایک چھکا مار کر آؤٹ، بابر اعظم 0 پر چلتے بنے۔ آئرش بلے بازوں نے پاکستان کی ورلڈ کلاس بالنگ کا پول کھول دیا۔ شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں لی، 49 رنز کھائے، نسیم اور عامر کو بھی خوب دھویا۔ اس وقت جس صورتحال میں گرا پڑا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں۔ وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پی اے سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق، اصل مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے۔ پی ٹی آئی پی اے سی کی چیئرمین کے لیے بات کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی 2011 سے ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، بات نہیں کریں گے کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ بولے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر کوئی تشویش نہیں، معاشی اشاریوں میں آئندہ دنوں میں بہتری نظر آئے گی، یہ احتجاج کرتے رہیں گے، انہیں کوئی حمایت حاصل نہیں۔ سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری گرینڈ ڈائیلاگ کے حامی۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب میں کہا پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، ایک طرف معاشی بحران تو دوسری طرف دہشت گردی۔ سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل کے حل کی امید نہیں۔ صدر زرداری نے مفاہمت اور یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کہ ایسے سیاستدان جو اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے، انہوں نے پیغام کے جواب میں گالم گلوچ اور شور شرابہ کیا۔ گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے اور بھٹو کی تصویر والے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ میں کہا پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی۔ نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی، سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ سے قرضوں، ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی کے لیے مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند۔ مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ میرپور سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کا راولہ کوٹ میں پڑاؤ۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ کمشنر راولہ کوٹ کی رہائش گاہ پر عوامی ایکشن کمیٹی اور چیف سیکرٹری کے درمیان مذاکرات میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ عوامی ایکشن کمیٹی رہنما مطالبات منظوری کا معاہدہ پڑھ کر سنائیں گے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں مسلم لیگ نون سمیت دوسری جماعتیں مسئلے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کریں، ہم کشمیریوں کے مسائل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ آئی ایم ایف ٹیم پاکستان پہنچ گئی، مذاکرات کل سے ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، کہا معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا، مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو لیڈ کرنا ہوگا۔ روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے، شرح سود میں کمی آنی چاہیے، صنعتیں 25-26% انٹرسٹ ریٹ پر کام نہیں کر سکتی۔ ایف بی آئی کا
ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज मुतालबा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नर हाउस कोई साजिश का गढ़ हो, लेकिन कम से कम अगर कोई अपनी नालायकी और नाअहली छुपाना चाहता है इस कन्फ्रंटेशन में, तो मैं नहीं होने दूँगा। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल ना बनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। कोशिश करूंगा ओहदे से इंसाफ करूं। माजी में जो हिस्सा केपी को मिलना था वो नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत से कहूंगा पानी के मामले पर मिलकर काम करें। केपी के हालात सबके सामने हैं। जज को अगवा किया गया। अमन व अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। हुकूमती रेट कायम करने के लिए उनका एहसास महरूमी दूर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PP, नून लीग और MQM को जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। PDM की निगरां हुकूमत और अब फिर PDM हुकूमत गंदुम बहरान की जिम्मेदार है। पाकिस्तान गजा के मामले पर आगे बढ़कर अमली किरदार अदा करे। गजा के मामले पर व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। पंजाब के किसान गंदम की सरकारी कीमत मिलने के मुंतजर। किसानों का कहना है बारदाना मिडल मैन को दिया जा रहा है। हम मारे मारे फिर रहे हैं। सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। AIB ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने कहा ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तकवीयत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार सौले बतरजी ने कहा पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में AIB ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। कौमी हॉकी टीम का शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार इस्तकबाल। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम कोलालमपुर से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का वेलकम किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। फूल निछावर हुए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूद समेत दीगर भी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कौमी हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया। वजीर आजम का हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने CNS इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियन जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान की नासिर इकबाल को 3-1 से शिकस्त। इब्तदाई सेट पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम रहा था। मिस्री हरीफ ने कमबैक करते हुए लगातार 3 सेट जीत लिए। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की अच्छा खेल पेश करने पर दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए। मरकजी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर खालिद मकबूल को चेयरमैन मुंतखब कर लिया। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सफवारी, अमीनुल हक और रिजवान बाबर शरीक हुए। तंजीमी और सियासी अमूर पर मुआवनत के लिए मरकजी कौंसिल की तश्कील का फैसला।
सानहा 12 मई को 17 बरस बीत गए। 2007 में कराची में आग और खून का खेल खेला गया। शाहराहों पर बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। 50 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 12 मई से मुताल्लिक कई तहकीकात हुई, लेकिन मुतासरीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। कराची में डाकुओं की खवातीन से भी लूटमार। शादमान टाउन में खातून का बैग छीना, मुज़ाहमत पर खातून को जमीन पर गिरा दिया। मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून के घर के बाहर पहुंचते ही मुलजमान ने लूटमार की। भैंस कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवारों की दिन दहाड़े लूटमार। कार सवार अफराद से नकदी कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। लियाकतपुर में अहले खाना ने गैरत के नाम पर 18 साला लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है लड़की को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया। अहले खाना खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन कर रहे थे। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात हैं। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की मौत। 16 साल की फारिया ख़ियाबान बुखारी के एक बंगले में बच्चों को संभालने के लिए रखी गई थी। घर के मालिक के मुताबिक वो खाना खाने के लिए घर से बाहर थे। वापस आए तो बच्ची की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है पंखे के पर टेढ़े नहीं हुए, बच्ची की गर्दन पर निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी बात कही जा सकेगी। कनाडा पुलिस ने सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 4 हो गई। कैनेडियन पुलिस का कहना है 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलहा केस में गिरफ्तार है और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। सुपरिटेंडेंट मनदीप का कहना है कत्ल में जो भी मुलव्वस हैं उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इसराइली फोर्सेस के फिर शुमाली गजा में हमले। जबालिया में बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। दिरुल बलाह में 10 अफराद शहीद हुए। रफा में मकान पर हमले में 9 फलस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है हमास रहमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंदी हो जाएगी। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। इजराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तल अवीव में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से पानी की तोपों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का हुकूमत से इंतखाबात कराने और गिरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम का एतराफ़। कहा तारीख में अमरीका और इसराइल ने ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हलाकतों में अमरीका मुलव्वस है। अमरीका ने सिर्फ इराक में 10 लाख अफराद को कत्ल किया। अफगानिस्तान के शिमाली सूबा बगलान में बारिशों से तबाही। सैलाब में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता, 1500 मकानात तबाह। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है सूबा बदख्शां, बगलान और हरात सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद में बारिश, मरी और अयूबिया में शदीद जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वजीराबाद और गिरदुनवाह में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। और ऐसे तो इससे मोहब्बत में कमी होती है। माँ का एक दिन नहीं होता, सदी होती है। आज दुनिया भर में माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस अजीम हस्ती को, कुर्बानियों को सलाम पेश करना है। मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास उजागर करना है।